Okay, good morning, dear students. Today I will discuss about the rotary air compressor and its type. This is the topic of the unit 4. The subject name is the thermal engineering and the gas dynamics and the semester 6. The outline of today's lecture, that is the introduction about the rotary compressor. What is the application of the rotary compressor, types of the rotary compressor, in which of the roots blower compressor, vane blower compressor, screw compressor and the scroll compressor. This is the first slide of the today lecture. Rotary compressor. What is the meaning of the rotary compressor? When the rotating motion of the mechanism is taking place, that is called a rotary compressor. And if the air is compressed by the rotary motion of the mechanism, that is called a rotary compressor. And there are the basically two types: positive type and the rotodynamic type. So positive type, in which of the root blower, vane blower, screw type and the scroll type. These are the four types of the positive rotary compressor. And the rotodynamic, in which of the centrifugal, radial and the axial type of the compressor. So there are the different kinds of the rotary compressor. In the axial compressor, air will be flowing in the axial direction along the blades of the compressor, and the radial flow, that is of the two flow type of the radial flow, inward and the outward. If the air is coming from the outside to inside, that is called a inward radial flow. If the air is coming going from the inside to outside, that is called the outward radial flow. The centrifugal manner, and the air is flowing through the centrifugal manner and compressed by the centrifugal action, that is called a centrifugal compressor. This is the rotary compressor introduction. It is a positive displacement type of compressor, जिसमें कि एयर एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है, सक्शन होता है उनका, और उनका एयर का जो है एक चैम्बर पे ले आके वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, कंप्रेस करते हैं ब्लेड्स के थ्रू या वेन्स के थ्रू, स्क्रॉल के थ्रू या आपका स्क्रू के थ्रू. ये इनकी एक इम्पोर्टेंस रहती है. Axial compressor uses a series of the turbine blades similar in the appearance to a jet engine to force air into the smaller and the smaller area. सेंट्रिफ्यूगल एयर कंप्रेसर जो रहते हैं, इनका यूज जो होता है, इनकी जो रेंजिंग रहती है वो 150 HP से लेके 10,000 HP तक रहती है. Centrifugal compressor draws in the air to the center of an impeller and then accelerate to the outward toward to the its parameter. सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर मेन खास बात रहती है, एयर जो है सेंटर पे आती है और उसके बाद एक्सेलरेट होके बाहर जाती है. सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग आर द वाटर कूल्ड एंड यूज द 2 और द 3 स्टेज ऑफ द कंप्रेसर. सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेसर का जो इस्तेमाल किया जाता है वाटर कूल्ड उसमें करते हैं, और 2 या 3 स्टेज कंप्रेसर में होता है. रोटरी स्क्रू कंप्रेसर इन साइजेस फॉर द स्मॉल इन कार्स अप टू द 500 to 600 HP are very popular because of their high reliability and the low maintenance requirements. These are the main features of the rotary compressor. Rotary air compressor, in which the rotary air compressor is a positive displacement type of mechanism. Air enter in a sealed chamber where it is trapped between the two contra rotating rotors. They reduce the volume trapped air and deliver it to compress to the proper pressure vessel level and the high mass rate but the low pressure ratio. Because of the जो एयर कंप्रेस हो रही है वो दो रोटर लोब्स के बीच में होती है. जैसे आप घरों में जो आपका सीलिंग फैन रहता है, तो सीलिंग फैन में क्या देखते हैं, जब तक सीलिंग फैन नहीं चलता है तो एयर यदि सर्कुलेट भी हो रही है तो कंप्रेस नहीं होती, क्योंकि फैन को रोटेशन नहीं मिला है. जैसे ही फैन को रोटेशन मिलता है तो फैन के ब्लेड्स मूव करती हैं, और फैन की ब्लेड्स जब मूव करती हैं और एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है तो उसके बीच में एयर जो है कंप्रेस होती है. कंप्रेस होने के बाद एयर डिलीवर होने के बाद आपको कूल एयर या जो भी हॉट एयर है वो आपको रूम में सप्लाई की जाती है. तो हाई मास फ्लो रेट की एयर सप्लाई होती है, जबकि उसका प्रेशर रेशियो बहुत कम रहता है. ठीक है. व्हाट आर द एप्लीकेशंस? दिस इज द यूज फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस. इंडस्ट्रियल यूज करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, ड्राई क्लीनिंग पर्पज में के लिए साफ करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स उसके लिए करते हैं, फूड एंड बेवरेज के लिए करते हैं, कमर्शियल यूजेस के लिए करते हैं. टाइप्स ऑफ द रोटरी कंप्रेसर: रूट ब्लोअर टाइप के कंप्रेसर होते हैं, वैन टाइप के कंप्रेसर होते हैं, स्क्रू कंप्रेसर होते हैं और स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं. तो सबसे पहला रूट ब्लोअर कंप्रेसर है. द रूट्स टाइप ऑफ ब्लोअर इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर व्हिच ऑपरेट्स बाय द पंपिंग ऑफ फ्लूइड विथ ए पेयर ऑफ द लूप्स.
Fluid is trapped in pockets surrounding the lobes and carried from the intake side to the exhaust. That is the main specification or the main features of the Roots blower compressor. The most common application of the Roots type of blower has the induction device on the two-stroke diesel engine. This is the mechanism in which the Roots blower compressor are the working. It is are used in the reverse to the measure the flow of gases or the liquids, for the example in the gas meters. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो आपके 2 lobes है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 5 lobes है। तो 5 lobes और 2 lobes में अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन डिफरेंसेस रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 lobes हैं कि लो प्रेशर की जो एयर है इधर से इंटर करती है, इन lobes के बीच में कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के बाद यहाँ से निकल के चली जाती है। तो जो व्हाइट एरो आप देख रहे हैं ये सब आपका फ्लो पाथ को शो कर रहा है। जितने भी आप व्हाइट एरो देख रहे हैं ये सब फ्लो पाथ को शो कर रहा है। इसी तरीके से 5 लो रूट्स पंप की यदि बात करेंगे तो लो प्रेशर की एयर यहाँ से एंटर करती है और इनके लोब्स के बीच में कंप्रेस होने के बाद यहाँ से बाहर निकलती है हाई प्रेशर के फॉर्म में। और यहाँ पे जितना भी आपका मैकेनिज्म है वो ब्लोअर सिस्टम के थ्रू ही काम कर रहा है। Second is the vent type of the compressor. Vent type of the air compressor having a fixed casing and a rotary rotor disc which has the slots for the holding the sliding plates, जो कि आपको नेक्स्ट फिगर में देखने को मिलेगा कि उसमें आपकी डिस्क रहती है जो रोटेट होती है एंड डिस्क के रोटेट होने से स्लाइडिंग प्लेट्स को भी मूवमेंट मिलता है, स्लाइड होती है इनर साइड से इसेंट्रिक के फॉर्म में। तो ये आपको इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा। ये एक प्लेट रहती है स्लाइडिंग प्लेट, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की वो स्लाइडिंग प्लेट है, केजिंग्स है जो कि पूरी असेंबली को होल्ड करती है। एयर जो है यहाँ से इनलेट करती है और यहाँ से बाहर निकल के जाती है। एक रोटर होता है जिसपे कि आपकी वेन्स लगी हुई है, रोटर्स लगा हुआ है जिसमें कि आपकी वेन्स लगी हुई हैं। वेन्स जो रहती है सेंट्रिक फॉर्म में रहती है, सेंट्रिक फॉर्म में नहीं रहती है, इसेंट्रिक है। और जो स्लाइडिंग प्लेट है वो इसेंट्रिक फॉर्म में रोटेट होती है। तो स्लाइडिंग प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ द एयर विल बी ट्रैप्ड इन द sides of plate coverage, the air gets compressed and thus result in the compressed air. जनरली क्या होता था कि अभी आपका जो लोब ब्लोअर था, लोब टाइप का जो पहले टाइप का ब्लोअर था उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में एयर को ट्रैप्ड किया जाता है क्योंकि बहुत सारी वेन्स भी लगी हुई हैं और उसका जो मैकेनिज्म है ये सेंट्रिक फॉर्म में। सेंट्रिक फॉर्म में यदि कोई भी चीज को हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एयर जो है कम ट्रैप्ड हो पाती है। ज्यादा एयर को ट्रैप्ड करने के लिए हमें एसेंट्रिक मैनर बनाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसमें कि हम वेन्स वगैरह लगा के और एयर को कंप्रेस करवाते हैं। थर्ड इज द स्क्रू कंप्रेसर। इसमें जैसा कि आपने कभी यदि देखा हो कि मार्केट में कि कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज को कटिंग करने के लिए स्क्रू टाइप के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था। तो स्क्रू कंप्रेसर आर द एफिशिएंट इन द लो एयर प्रेशर रिक्वायरमेंट। टू स्क्रू रोटेट विथ ईच अदर, thus the trapping air between the screws and the air compressor casing, forming the pockets which progressively travel and get the screws and delivering it a high pressure which open the delivery valve। तो यहाँ पे मेनली जो फंक्शन है कि 2 स्क्रू हैं जो रोटेट करते हैं आपस में और उनके बीच में एयर को ट्रैप करके कंप्रेस कराते हैं और उसके बाद प्रोग्रेसिवली वो ट्रेवल करती है, स्क्वीज होती है और उसको हायर प्रेशर में डिलीवर करते हैं डिलीवरी वाल्व के थ्रू। तो यहाँ पे वही चीज का मैकेनिज्म बताया गया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्क्रू ब्लेड्स हैं, दीज आर द स्क्रू ब्लेड्स जिसके बीच में एयर जो है कंप्रेस होती है। तो एयर इज कमिंग फ्रॉम द वन साइड and the mechanism is taking place from the movement from the one side to the another side with the help of this mechanism and the screw blades which are taking place here, there the air it is compressed done by the movement of the screw blades. The compressed air delivery is continuous and point in operation than a reciprocating compressor. Scroll compressor, the scroll type of the compressor having the scroll driven by the prime mover. The scroll outer is trapped air and then as they rotate, the air travel from the outwards to the inwards, thus getting the compressed due to the reduction in the area. तो this is the mechanism जहाँ पे कि एयर को स्क्रॉलिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है ट्रैप्ड किया जाता है, रोटेट होती है, ट्रेवल होती है, फिर उसको आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ लेके आते हैं ताकि कंप्रेस हो सके, ताकि उसका रिडक्शन एरिया हम घटा सके। तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग टाइप की है, जैसा कि आप साइक्लोन टाइप का मूवमेंट देखते हैं जब कभी साइक्लोन आता है, उसी तरह के मूवमेंट को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि कंप्रेस एयर जो है डिलीवर जो होती है सेंटर स्पेस होती है
और टू द डिलीवरी एयरलाइन उसके थ्रू करते हैं। पहले सेंटर स्पेस में आती है और सेंटर स्पेस से फिर एक हम डिस्चार्ज लाइन को अटैच करते हैं जहां से कि एयर फ्लो होती है। तो दिस इज द इनलेट जहां से कि एयर अंदर जा रही है। तो दिस इज द ऑर्बिटिंग स्क्रॉल की स्क्रॉलिंग हो रही है। इसका जो आप क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं वो रिड्यूस होता जा रहा है। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर साइड पे ज्यादा था और उसका जैसे इनलेट एयर यहाँ पे कंप्रेस अंदर आ रही है तो कुछ इनमें दो तरह के स्क्रॉल बने रहते हैं। एक ऑर्बिटिंग स्क्रॉल रहता है जो कि मूवमेंट लेता है, एक फिक्स स्क्रॉल रहता है जो कि अपनी जगह पे फिक्स रहता है। कंप्रेशन चैम्बर है जहाँ की फिक्स और ऑर्बिटिंग स्क्रॉल के बीच में एयर जो है कंप्रेस होती है और आफ्टर द कंप्रेशन एयर विल बी मूव इनटू द दिस सेंटर पार्ट जो कि आउटलेट बना हुआ है और यहाँ से डिस्चार्ज लाइन को अटैच कर दिया जाता है जिससे कि एयर को हमें डिलीवर जहाँ पे हमें करना रहता है। So this is the today lecture in which about today discuss about the rotary compressor and the types.